Bismillahirrahmanirrahim. Welcome the students of Software Project Management Section A. Today is 11th of January 2021, and today we are going to talk about the work breakdown structure, and this is going to be video 1. After you have seen this video and understood it, you can then move on to video 2, which will deal some software projects, domains, and types. But in this, let's come back to this video's description, video 1. Here you're going to learn what the work breakdown structure is and how you can create a work breakdown structure for your projects, especially the projects that have been assigned to you. You are already working on them, you have started working on them, and in the first phase of your project, when you will be planning your project, you will have to create a work breakdown structure for your project. That is why it is being discussed right now. I'm sorry, because of some hardware problems with the camera. This video is not going to show my face, but I'm working on it. The camera will be fixed by the next lecture. So for the moment, please bear with me. Okay, let's move on. Work breakdown structure. Now, first of all, we have to understand the word work. I've already told you when we were discussing about the effort estimation that the word work has two forms in English. Like the work is also a noun and it's also a verb. Like when we say work as a noun, then it signifies something, the name of something that has been prepared, that has been finished, like your homework, your classwork. Similarly, you have other names of things like artwork, music work. But that is a noun. It signifies something which has been finished, which has been prepared. And the other form of the word is it's being a verb. A verb is a particular name of something which shows some action. So the work that is being done to produce something will be termed as a work as a verb. And we did have a very specific word for the work as a verb, and it was known as effort. In the previous previous week lectures, we discussed about the estimation of the effort, which comes something like a numeric calculation. But now we are going to deal with the work as a noun, and as a noun, the work will be known as work in our project management terminology. Here you go. Work as a noun is the task to be done or completed, something which will be available when done in some physical form. So the task to be done or completed is the work as a noun, and the finished form of the tasks is also known as the work. It is not quantifiable. You cannot quantify it. You cannot assign a number to it. You cannot scale it. You cannot measure it by some numbers. Yet we have to estimate the work, and that will be done inside the work breakdown structure.
The second kind of work known as effort, we've already done that. It is quantifiable because at the end of the estimation, you get a number which is known as the man hours or the person hours. Let's move ahead. Now, if we have understood the word work, and let me remind it that the work is the physical or the identifiable something which comes as a result of some effort. Now, a project, especially a software project, will have a lot of things to produce, or so to say, a lot of work elements to produce, and it will be very difficult to represent those work elements as one unit. So we will have to decompose that work into some identifiable smaller elements. That is where the work breakdown comes in. Now, it is believed that if you've got a number of elements inside the work and the count goes somewhere around hundreds, it will be very, very difficult, nearly impossible to remember each and every element and to relate it or to exhibit it in front of the audience. So what we are going to do, we are going to watch those work elements step by step, pinch by pinch. Now, there is a research by some psychologists which says that our brains can normally comprehend around 7 to 9 items simultaneously, not more than that. And some people have relatively weaker brains and they cannot comprehend 7 or 9 elements, maybe smaller or lesser than 7 or 9 items simultaneously. And what about the project which contains not just dozens of elements, it contains hundreds or maybe thousands of elements, and each of them is specified by a particular task. It will be very difficult to comprehend them. So we'll need to have some tool which can best represent the elements or the decomposed parts of a work and work of a project. Now, WBS or the work breakdown structure is such a tool. It shows the hierarchical decomposition of your work, and you can name those hierarchies level by level, such as phases. And each phase, actually, the project will have a lot of phases, and each out of those phases will have several deliverables, and each of the deliverables will have a decomposition of several sub-deliverables. So at least there are 3 levels that we can understand in this hierarchical decomposition known as the work breakdown structure. Now, there has to be a limit. There has to be the lowest level, which cannot be at an infinite distance. It comes very soon, and that foot or the leaf of this hierarchy is known as work package. So when you start looking at a work breakdown structure in the software projects, you will at the top see the topmost level consisting of phases, and then the lowermost level of the work breakdown structure, it will be made up of work packages. I'm going to come about the discussion of work packages in a little moment later. तो आपको ये ज़हन में रखना है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारे लिए हमारे प्रोजेक्ट के वर्क को डिकम्पोज करके हमें दिखा सकता है, और ये डिकम्पोजिशन हायरार्की की शक्ल में होगी। और इस जिस तरह एक होता है ना शजरा नसब होता है, वो एक हायरार्की की फॉर्म में होता है, उसमें ब्रांचेस हैं,
स्मॉलर ब्रांचेस हैं, और जिस तरह के आपके डाटा स्ट्रक्चर्स में ट्रीज होते हैं, यानी रूट से ब्रांचेस शुरू होती हैं, फिर ब्रांचेस में से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, और अल्टीमेटली सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो वर्क पैकेजेस पे खत्म होती हैं, जो कि वो लीव्स होते हैं असल में। तो असल में ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी इसी तरह का एक हायरार्किकल ट्री सा है, जिसमें टॉप मोस्ट लेवल जो होगा वो फेजेस का होगा, फिर फेजेस में से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो डिलीवरेबल्स, और डिलीवरेबल्स में से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो सब डिलीवरेबल्स, और एन मुमकिन है कि सब डिलीवरेबल्स में से फर्दर ब्रांचेस निकलें, वो भी सब डिलीवरेबल्स ही कहलाएंगी। लेकिन ये सारा सिलसिला किसी एक जगह पे जाके रुक जाएगा जहां पे फर्दर इस डिकम्पोजिशन का और कोई लेवल नहीं होगा। तो वो आखिरी लेवल, और ट्रीज की जबान में जो लीव वाला लेवल है उसे हम कहेंगे वर्क पैकेज। अब इसमें फर्दर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले मैं काम करता हूं कि आपके लिए एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, जिसमें जो WBS है उसके डिलीवरेबल्स, सब डिलीवरेबल्स, और सब डिलीवरेबल्स के अंदर फर्दर सब डिलीवरेबल्स, और जब बिलाखिर एक लोएस्ट सब डिलीवरेबल भी हो जाएगा तो फिर आप इस हायरार्की के एंड पे पहुंच जाएंगे, लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, और उस लोएस्ट लेवल को नाम दिया जाएगा वर्क पैकेज का। तो ये इस WBS की वर्टिकल डीकंपोजिशन है, और ऐसे ही कई और एलिमेंट्स या पार्ट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो फिर हमें इसकी हॉरिजॉन्टल हायरार्की भी नजर आना शुरू हो जाएगी। अब ये WBS की थोड़ी सी हिस्ट्री भी है, आप अगर पढ़ना चाहें तो। ये WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय पीपल वर्किंग इन US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उनका महकमा दिफा है, यानी जो उनका मिलिट्री का एक मिनिस्ट्री है उसका डिपार्टमेंट, और वहां पे के बहुत सारे काम होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स भी बहुत से होते हैं। तो इस वजह से 1993 में उन्होंने एक तरीका डिवाइस किया कि जो मुख्तलिफ काम होते हैं उनको किस तरह से डिकम्पोज करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस वजह से वहां पे इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को उन्होंने क्रिएट किया, और उससे पहले जो हम बात कर रहे थे उसको अब मुकम्मल कर लेते हैं। वर्क पैकेज क्या है जिसकी बात हुई थी, कि ये वर्क पैकेज हायरार्किकल डिकम्पोजिशन में सबसे लोएस्ट लेवल होगा। तो ये वर्क पैकेज असल में एक डिस्क्रिप्शन है, एक इंट्रोडक्शन है, जो एक्चुअल काम किसी एक टीम को या किसी एक शख्स को असाइन किया जाना है, ताकि वो इस वर्क का ये छोटा सा एलिमेंट कंप्लीट करे। तो वो जो छोटा सा एलिमेंट जो डिस्क्राइब किया जाएगा उसको कहा जाएगा वर्क पैकेज। Work package is what? It is the lowest level of the work breakdown structure, and it identifies the amount of work being created or being finished by the smallest team, which can consist of a person, one single person, or maybe two or three other persons. Work package है वर्क का जिससे स्मॉलेस्ट वर्क पैकेज बनाना मुमकिन ना हो। यानी आप काम के अगर हिस्से करते जाएं कि जी किसने कितना काम करना है, तो कोई एक स्टेज आएगी जहां पे आप सबसे छोटे से छोटे पॉसिबल काम पे पहुंच जाएंगे, उससे ज्यादा छोटा काम मुकम्मल मुमकिन नहीं होगा क्रिएट करना। तो ऐसी स्टेज को आप कहेंगे वर्क पैकेज। ये वो काम का एलिमेंट है जो कि किसी एक टीम ने बनाना है, और यही वो एलिमेंट है जिसको किसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने असाइन करना है और वक्तन फवक्तन उसको मॉनिटर भी करना है। तो उसे पता होना चाहिए कि ये वर्क एलिमेंट कितने एफर्ट से बनेगा। रिमेंबर आपको मैंने बताया था कि वर्क एज अ वर्ब एफर्ट कहलाता है, और वर्क एज अ नाउन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में सिंपली वर्क कहलाता है। तो
तो अब वो जो वर्क पैकेज है उसका साइज इतना होना चाहिए कि इजीली मैनेज हो सके बाय अ सिंगल पर्सन और मे बी बाय अ टीम, 2 or 3 पीपल मैक्सिमम। नॉर्मली ये होता है कि ये एक ही पर्सन होता है या ज्यादा से ज्यादा 2 पर्सन होते हैं। अब एक रूल है जिसके तहत वर्क पैकेज का साइज बेस्ड ऑन दी corresponding effort in terms of man hours डिसाइड किया जाता है। उस रूल को कहते हैं 880 रूल। 880 रूल। अब इस 880 रूल में 8 मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 80 है। दैट मींस के 880 रूल में कई वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, यानी एक सेट ऑफ वैल्यूज है जिसमें सबसे कम वैल्यू 8 है और सबसे बड़ी वैल्यू 80 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अब ये 8 और 80 का क्या मतलब है? 8 या 80 का मतलब ये है कि ये असल में वैल्यूज है मैन आवर्स की। और वो आप अगर पिछला लेक्चर आपको याद हो तो मैन आवर्स का क्या मतलब था? मैन आवर्स का मतलब था, मैन आवर्स का मतलब था वो एफर्ट। अगर हम एक मैन आवर की बात करते हैं, 1 मैन आवर, तो 1 मैन आवर का मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क बीइंग डन or the effort being done to complete a work, the amount of work, I'm sorry, uh, man hour का मतलब है the effort put into work to produce work within 1 hour without taking any breaks by a normal person। यानी 1 घंटे के अंदर कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी, जितना काम, जितना एफर्ट कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, उसको कहते हैं 1 मैन आवर। 880 रूल का मतलब ये होगा कि जो मिनिमम पॉसिबल किसी को वर्क असाइन किया जा सकता है एज अ वर्क पैकेज, वो 8 मैन आवर्स का हो सकता है। लेकिन अगर वर्क इससे बढ़ता है तो और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम हो जाएगा 80 मैन आवर्स तक। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को डिसाइड करना है कि अगर वर्क पैकेज 8 या इससे कुछ ज्यादा है तो फिर तो शायद वो एक ही आदमी को असाइन करेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 8 से ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है, तो फिर वो अकॉर्डिंगली 2 या 3 लोगों को ये काम असाइन कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितना मैन आवर्स का वैल्यू होगा? 80, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई वर्क एलिमेंट 80 से ज्यादा हो जाता है तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को ये करना होगा कि उसको मजीद छोटे साइज के वर्क पैकेजेस में ब्रेक डाउन करे, ताकि हर वर्क पैकेज किसी एक टीम, जिसका 1 या 2 मेंबर्स हो सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर्स हो सकते हैं, उनको ये काम असाइन हो सके। अब जब काम इतने छोटे साइज में चला जाता है तो फिर उसे मैनेज करना, उसे मॉनिटर करना और उसकी रिजल्ट्स या आउटपुट्स को मेजर करना इजी हो जाता है। इसके अलावा ये भी इजी हो जाता है असाइन करना कि जी इस वर्क पैकेज पे जितना वक्त लगना है तो कॉस्ट कितनी आएगी। अगर वर्क पैकेज का साइज 80 से भी बड़ा होता तो फिर उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करना जरा मुश्किल हो जाता। इसके अलावा ये असेस करना कि एक वर्क पैकेज में कितने रिसोर्सेस हैं, वो इस वर्क पैकेज के साइज 8 या 80 रूल के होने की वजह से इजी हो जाएगा। यानी ये पता चल जाएगा कि इस वर्क पैकेज में कितने रिसोर्सेस की जरूरत है और कब जरूरत है। और फिर जब जरूरत पड़ती है तो जितने अरसे के लिए जरूरत पड़ती है उतने अरसे के लिए वो रिसोर्सेज अरेंज किए जा सकते हैं। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स है, लाइक डेवलपर है या डिजाइनर है या टेस्टर है। इसके अलावा रिसोर्सेज हार्डवेयर हो सकता है, कंप्यूटर्स, सर्वर्स, कनेक्शन के लिए स्विचेस या हब्स होते हैं, प्रिंटर्स। इसके अलावा कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं या फर्नीचर आइटम्स हैं या इसी नौयत की कोई और चीज हो सकती है जो उस वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स की शक्ल में लाजमी चाहिए। तो उस वर्क पैकेज की असेसमेंट होते ही उसकी रिसोर्स की असेसमेंट भी इजी हो जाती है।
इसके अलावा टीम में कौन कौन होना चाहिए, अगर एक शख्स है तो वो कौन होगा जिसको ये वर्क पैकेज असाइन हो, अगर एक से ज्यादा लोग हैं, 2 या 3 मैक्सिमम, तो वो कौन से होंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क पैकेज, कि कौन सा बंदा सूटेबल होगा, कौन सा डेवलपर सूटेबल होगा फॉर दिस वर्क पैकेज, वो इजी हो जाता है। यानी वर्क पैकेज एक अहम चीज है जिससे आप बहुत सारी बाकी चीजें असेस या एवेलुएट कर सकते हैं। अब आखिरी बात जो बहुत अहम है और आपके लिए बहुत ही गाइडलाइन का एक हिस्सा बन जाएगी, ये वर्क पैकेज हमारे लिए इस हद तक फायदेमंद होगा कि हम इसी की मदद से ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि एक एक्टिविटी कौन सी होगी। देखें, वर्क पैकेज किस चीज का हिस्सा है, वर्क एज अ नाउन का हिस्सा है, लेकिन इस वर्क को मुकम्मल करने के लिए कोई वर्क एज अ वर्ब यानी एफर्ट भी तो चाहिए ना। वो एफर्ट क्या होगा, वो कोई ना कोई एक एक्टिविटी की शक्ल में हमें एक जुमला ऐसा लिखना पड़ेगा जो कि उस एक्टिविटी को डिफाइन कर दे जो हमें उस वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करनी है। अब आपने जरा बहुत गौर से बात को सुनना है, वो एक्टिविटी जो आप किसी एक वर्क पैकेज के लिए लिख देंगे, ये ज़हन में रखें कि हर एक वर्क पैकेज की एक एक्टिविटी होनी है। तो जो एक एक्टिविटी आप एक जुमला लिखेंगे, वही जुमला, एक्टिविटी वाला जुमला एक्टिविटी के चार्ट में चला जाएगा, चार्ट ऑफ एक्टिविटीज। और ये चार्ट ऑफ एक्टिविटीज है, ये आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे। ये चार्ट ऑफ एक्टिविटीज असल में वही एक्टिविटीज का चार्ट है जो हमारे प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में, प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाते वक्त हमें चाहिए होता है। चार्ट ऑफ एक्टिविटीज या टेबल ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें हमने एक्टिविटी का नाम, उसका लेबल, उसके प्रीडिसेसर्स के नाम और उन एक्टिविटीज की ड्यूरेशंस इन टर्म्स ऑफ डेज या वीक्स या मंथ्स, जो भी हमें पता चल जाए वो लिखनी होती है। यानी इसका मतलब है कि नॉर्मली जब हम क्लासरूम में या किसी इम्तिहान में बैठ के प्रोजेक्ट नेटवर्क बना रहे होते हैं, तो हमारे पास एक बना बनाया चार्ट ऑफ एक्टिविटीज आता है। लेकिन अब वो नहीं होगा, अब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट का चार्ट ऑफ एक्टिविटीज भी खुद ही बनाना है। तो वो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज कैसे बनेगा, वो मैं आपको ऑलरेडी अब बताना शुरू हो चुका हूं। आपको अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो वर्क पैकेज लिखना है, WP इन शॉर्ट फॉर्म, वो वर्क पैकेज के साथ कोई ना कोई एक एक्टिविटी स्टेटमेंट एसोसिएटेड होगी। मसलन ये कि क्रिएट द टेबल ऑफ द डेटाबेस, ये एक एक्टिविटी हो सकती है। या आप एक एक्टिविटी और लिख सकते हैं, मसलन आप कह सकते हैं टू ड्रॉ द ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑफ द सॉफ्टवेयर या ऑफ द सिस्टम। वो जो ये जुमला मैंने बोला है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक वर्क पैकेज है। तो एक वर्क पैकेज और एक एक्टिविटी, इन दोनों में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी। लेकिन पहले आपने एक वर्क पैकेज डिफाइन करना है। आपने डिसाइड करना है कि आपके वर्क एलिमेंट्स के सबसे निचले लेवल पे कौन सा वर्क पैकेज होगा। जब आप वो वर्क पैकेज लिख लेंगे और ये आप डिसाइड कर चुके होंगे कि जी ये 880 रूल के तहत कितने मैन आवर्स डिमांड करता है, अब वो जो मैन आवर्स करने हैं उस एक्टिविटी का नाम आपने आइडेंटिफाई करना है उस वर्क पैकेज के लिए। ये पॉइंट खास तौर पे आपने ज़हन में रखना है, इसको नोट भी कर लें। हमें वर्क पैकेज की अहमियत का अंदाजा हो रहा है कि यही वर्क पैकेज हैं जिनकी मदद से आखिर में हमने चार्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाना है। आखिर में का मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के आखिर में। तो वो वर्क पैकेजेस बन जाएंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उनमें से हर एक वर्क पैकेज की एक्टिविटी कौन सी है, क्योंकि वही एक्टिविटी बाकी वर्क पैकेजेस की एक्टिविटीज के साथ मिलके एक सीक्वेंस में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का चार्ट ऑफ एक्टिविटीज बन जाएगा। और आप समझते हैं कि वो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज हमें मिलने की देर है, तो हम प्रोजेक्ट का नेटवर्क बना सकते हैं और नेटवर्क के बाद हम स्केड्यूल भी बना सकते हैं एंड सो ऑन।
आई होप कि आपको ये वर्क पैकेज का आइडिया क्लियर हुआ है। वर्क पैकेज में फर्दर थोड़ी सी बात हम करते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। मैं ये करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन है, ये आप बाद में खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की टाइप्स का बताता हूं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं, 3 स्टाइल्स हैं कह लें। ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। एक तो है ड्राइंग का काम, जिस तरह आप डाटा स्ट्रक्चर में ट्रीज ड्रॉ करते हैं, या आप आम जिंदगी में भी कोई ट्री ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्गेनोग्राम्स वगैरह, उसी तरह से ये ट्री की शक्ल में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें पेजेस, बहुत सारे पेजेस भी चाहिए होंगे, या बहुत बड़ा एक चार्ट पेपर चाहिए होगा। दूसरा तरीका ये है कि जी ड्रॉ नहीं करते, कागज पे लिख लेते हैं। उसे आप कहते हैं हर, हर डिस्क्रिप्टिव। जो तीसरे नंबर पे आपको नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव। इसमें ये होता है कि आप जिस तरह हेडिंग्स लिखते हैं किसी एसे में, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स लिखते हैं, फिर सब हेडिंग्स के नीचे और सब हेडिंग्स लिखते हैं, तो उन्हें कहते हैं मिलिट्री स्टाइल कोडिंग। तो हर वो जो आप ब्रेक डाउन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का लिखते जाएंगे, उनके कोई ना कोई सीरियल नंबर्स आप अलॉट कर देते हैं। और एक तीसरी किस्म का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो है जो नंबर 2 पे लिखा हुआ है। वो असल में ट्री हायरार्किकल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्टिव या मिलिट्री कोडिंग स्टाइल का जो स्ट्रक्चर है, उन दोनों का हाइब्रिड है, दोनों से मिक्स करके बनाया गया। यानी आप ट्री डायग्राम भी बनाएंगे और उसके अंदर वो जो हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हैं उनकी नंबरिंग भी करेंगे, सीक्वेंस नंबर उनके। फिलहाल मैं बाकी दो को छोड़ के डायरेक्टली चलता हूं। ट्री या हायरार्किकल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनना है, बहुत सिंपल है। पहले आप ये एक टेम्पलेट या एक जनरल फॉर्मेट देखें। ट्री वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो ये जो आपको दूसरा लेवल नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है फेज फेज फेज, ये असल में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यहीं से शुरू होता है। लेकिन ये बताने के लिए कि ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किसका है, किस प्रोजेक्ट का है, या किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, हमें एक छोटा सा लेवल इन फेजेस के ऊपर भी बनाना पड़ता है। आप ये समझ लें कि एक हेडिंग लिखना पड़ती है, प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम यूनिक फॉर्म में लिखने के बाद आप उससे नीचे जो पहला लेवल बनाते हैं वो फेजेस का होता है। मसलन प्रोजेक्ट में पहला फेज कौन सा था, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलें, इस तरफ, तो ये एरो थोड़ा सा गलत बन गया, आप यूं समझ लें कि इस तरफ चलें, तो जो लेफ्ट से राइट पहला फेज आता है वो सीक्वेंस में भी पहला फेज होगा। यानी ये वाला जो फेज है ये पहला होगा, और ये वाला जो फेज है ये दूसरा होगा, और इसी तरह से तीसरा, और अगर हो सकता है तो फिर चौथा, पांचवा एंड सिक्स्थ वन एंड सेवंथ वन और भी हो सकते हैं। ये क्या है, ये फेजेस हैं प्रोजेक्ट के। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ये फेजेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, क्योंकि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये फेजेस आपके वो एसडीएलसी वाले फेजेस नहीं है, ये असल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस हैं। हाँ, ये अलग बात है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस के अंदर ही तो असल में एसडीएलसी के फेजेस आते हैं। तो यहाँ पे इस पहले लेवल में आपको जो फेजेस लिखे हुए नजर आएंगे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दोनों के मुश्तरका कंबाइंड फेजेस होंगे। अभी मैं थोड़ी देर में उसकी एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं। अब हर फेज के नीचे क्या होगा, कम से कम एक या एक से ज्यादा डिलीवरेबल्स हो सकते हैं, और हर डिलीवरेबल के नीचे क्या होगा, हर डिलीवरेबल के नीचे जो लेवल है उसमें उस डिलीवरेबल के सब डिलीवरेबल्स होंगे।
और हो सकता है कि सब डिलीवरेबल्स के नीचे कई और सब डिलीवरेबल्स भी हों, कई लेवल्स तक, लेकिन ये सारी कहानी कहीं ना कहीं जाके रुकनी है। तो जो सबसे आखिरी लेवल होगा किसी एक फेज के नीचे, वो एक वर्क पैकेज होगा। यानी आप यूं समझ लें कि ये जो एक हिस्सा बनता है एक फेज के नीचे, वो कई डिलीवरेबल्स और कई डिलीवरेबल्स के कई सब डिलीवरेबल्स, और हर सब डिलीवरेबल के नीचे कई और सब डिलीवरेबल्स, और फाइनली किसी न किसी एक जगह पे जाके एक वर्क पैकेज जो किसी एक सब डिलीवरेबल का एंड पॉइंट है, और एक ही फेज के नीचे एंड पॉइंट के तौर पे कई सारे वर्क पैकेजेस हो सकते हैं। तो आपको हर एक फेज के अंदर इसी तरह की एक कहानी नजर आ रही है, लाइक दिस वन एंड सो ऑन। अब अगर आप इस चीज को ध्यान में रखें, ये जरा ज्यादा डिटेल में आपको मिल जाएगा। जो सबसे पहला लेवल था, जीरो लेवल, प्रोजेक्ट का नाम है, और लेवल वन में फेज का नाम है। वो हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फेज हो सकता है एसडीएलसी का फेज हो। और जब आप इससे निचले लेवल पे जाते हैं तो डिलीवरेबल्स हैं। डिलीवरेबल बजाते खुद मुकम्मल चीज नहीं होती जब तक कि उसके अंदर सब डिलीवरेबल्स ना हो, कई सारे सब डिलीवरेबल्स। तो वो तीसरा लेवल बन गया, लेवल नंबर 3। और फिर उसके नीचे हो सकता है कि एक और लेवल या कई और लेवल्स हो सब डिलीवरेबल्स के, और एक जो फाइनल एक लेवल होगा इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, एक वर्क पैकेज की शक्ल में होगा, जिसकी डेफिनेशन हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अब ये चूंकि बहुत बड़ा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, तो ये मुमकिन नहीं था कि मैं उसको इस जूम करके आपके सामने शो कर देता, लेकिन आप बाद में स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल होंगी, तो आप जरा जूम करके भी इसको देख सकते हैं। ये एक जनरल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, यानी इसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से नहीं है। ये आम जिंदगी के प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट है, जिसकी के ये एग्जांपल है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। मसलन प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउस रेडी फॉर फर्स्ट व्यूइंग। यानी इस प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट पे क्या होगा कि कोई एक मकान बन चुका होगा। अब उस मकान को बनाने के लिए वर्क के हिस्से क्या बनते हैं, यानी जो वर्क मकान की शक्ल में हमें बना नजर आएगा, उसके कई छोटे एलिमेंट्स होंगे। मतलब कमरे होंगे या हॉल होंगे या बाथरूम होंगे या किचन होंगे, ये कुछ ना कुछ तो होगा ना, फ्लोर्स भी होंगे। तो सबसे पहले फेज, किन फेजेस के अंदर प्रोजेक्ट का काम होना है। मसलन पहला फेज ये कि एस्टेट एजेंट अरेंजमेंट्स, यानी प्रॉपर्टी डीलर से कोई जमीन का कोई इंतजाम करवाना है। फिर जब वो जमीन आ जाएगी तो आप पहले उसमें कोई गार्डन बनाएंगे, या कोई एक स्टोरेज जहाँ पे तामीरात का सामान कहीं पे स्टोर होगा। और फिर आप ये नाम पढ़ते चले जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मकान एकदम तो नहीं बन जाता, वो मुख्तलिफ फेजेस में, मरहलावार फेजेस में मुकम्मल होता है। इसी तरह से जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में आएंगे तो उसमें भी यही होगा कि सारा का सारा सॉफ्टवेयर एकदम तो नहीं बना हुआ मिलेगा, उसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे फेजेस की शक्ल में काम हो रहे होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे बाद में डिटेल से देखिएगा। वैसे हम इस पे हम इंटरैक्टिव सेशन में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक और एग्जांपल, ये भी कोई कंस्ट्रक्शन किस्म की है, कोई मकान या कोई इमारत बन रही है। तो उसके वो फेजेस, पहले साइट अरेंज करनी है, फिर वहां पे कुछ सफाई करनी है, फिर वहां पे कुछ स्ट्रक्चरल स्टील्स बिछाने हैं, वो जो सरिया और इस तरह की चीजें बिछाते हैं, और फिर उसका एक्सटर्नल मुकम्मल करते हैं, उसके ऊपर स्लैब्स डालते हैं, फिर ईंटें लगती हैं, फिर उसके बाद उस पर प्लस्तर वगैरह और पता नहीं क्या क्या। ये आप पढ़िएगा। एक और इसी तरह की एग्जांपल, मैं एक ऐसी एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं जो सॉफ्टवेयर से ताल्लुक, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स में। मसलन एक प्रोजेक्ट है
कहीं से मुझे ये पिक्चर मिली थी, मैंने उसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया। सॉफ्टवेयर अपग्रेड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जहाँ पे कोई तारीख भी लिखी हुई है कि किस तारीख को ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया गया। अब वो प्रोजेक्ट का नाम भी आपके सामने आ गया है इस जगह पे, सॉफ्टवेयर RT वर्जन 7.5.2 माइग्रेटेड टू RT8। ये नहीं कोई एक सॉफ्टवेयर है जो पहले से बना हुआ था, उसको अपग्रेड करके या माइग्रेट करके एक नए सिस्टम पे इंस्टॉल किया गया। तो उसमें जो फेजेस होंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज की जाएगी, फिर डिप्लॉयमेंट होगी, फिर उसकी माइग्रेशन होगी, उसकी माइनर कॉन्फ़िगरेशंस या फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होगी वगैरह। अब इतना टाइम नहीं है कि हम वाकई इसकी डेप्थ में जाके इसको पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इसे जरा गौर से देखें। स्लाइड्स भी आपके लिए अपलोड हो जाएंगी थोड़ी देर में। अब उसके बाद है एक और, एक जनरल फॉर्म ऐसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की कि जो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बनाएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे। अब आपको जरा उसकी शक्ल ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। मसलन ये कि ये जो आपको फेज नजर आ रहा है, ये सारे का सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फेज है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये जो आपको 1 2 3 4 5, ये आप बड़े जाने पहचाने से नाम आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं वो फेज जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होते हैं। यानी आपका जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर आपको पैरेलल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करनी है, और आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान अपनी टीम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करवानी है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर साथ साथ जो काम करेंगे, वो इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में उसका खाका है। मसलन ये कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फेज होगा, उसमें डिलीवरेबल्स क्या होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान, स्कोप स्टेटमेंट। अब ये कोई नए लफ्ज नहीं है आपके लिए, इन पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्कोप स्टेटमेंट, प्रोडक्ट्स को, प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, वो आपको याद आ जाएगा। फिर हमने उसमें स्केड्यूल भी बनाया हुआ है, वही चीज जो प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाने के बाद आप CPM, PERT और फिर एक प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनाते होते हैं। और फिर पैरेलल में कुछ रिस्क मैनेजमेंट प्लान या कोई चेंज प्लान की भी जरूरत हो सकती है। और ये मुकम्मल नहीं है, इसमें और भी कई डिलीवरेबल्स होंगे। इतनी जगह नहीं थी कि सारे डिलीवरेबल्स यहाँ लिख लेते, इसलिए जितने हैं वही लिख दिए। अब अगर आप इस साइड पे आ जाएं कि ये जो एनालिसिस का फेज है, ये प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फेज है। उसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स डिलीवरेबल्स के तौर पे बनाई जा रही हैं, ग्लॉसरी है। और अगर ये आपको याद ना हो तो कम से कम आपको ये जरूर याद है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा था SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। ये भी एक डिलीवरेबल है, जिसके अंदर यूज केसेस भी होते हैं, स्पेक्स भी होती हैं, रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स। फिर डिजाइन का फेज आता है। डिजाइन का यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ पे बना सकते हैं डिजाइन में, तो स्क्रीन का डिजाइन, इसके अलावा कोड का डिजाइन, और कई चीजें जिनका डिजाइन बनना है। मसलन डेटा का डिजाइन, डेटा टेबल्स, यानी जो डेटा बेस के अंदर है। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन है, ये जो डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर भी कई डिलीवरेबल्स और सब डिलीवरेबल्स होंगे। मसलन सबसे पहले क्लास का कोड लिखना, फिर उसके अलावा फंक्शंस का कोड लिखना, फिर टेस्टिंग का मरहला होगा जो इन सब चीजों पे अप्लाई होगा, और फिर रोल आउट का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे मिलता जुलता एक फॉर्म है जिसमें कि आपको अपने प्रोजेक्ट के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो आप परेशान ना हो, ये फिलहाल तो इसका इंट्रोडक्टरी डिस्कशन हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस चलेगी, लेक्चर्स भी होते रहेंगे साथ साथ, तो जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स आगे चलेंगे, मैं साथ साथ आपको उनका गाइड भी करता जाऊंगा कि किस तरह से कौन सा डिलीवरेबल बनाना है। टास्क 3 है, आपको याद होगा, प्रोजेक्ट के लिए आपको बताए गए। तो अभी आपने उनमें से पहला ही अभी शुरू किया होगा, असाइनमेंट के तौर पे भी वो किया होगा, लेकिन साथ साथ और भी काम होने हैं जो आपको साथ साथ में गाइड करता रहूंगा। हमारी कोशिश ये होगी कि जो लर्निंग है वो, हमारे पास अब तकरीबन 1 महीने का टाइम है एग्जाम शुरू होने से पहले,
तो ये जो मंडे का टाइम है वो हम डिस्कशन पे रखेंगे, यानी रिकॉर्डेड डिस्कशन होगी। और जो वेनसडे या इसके अलावा भी अगर हमें कोई दिन मिल जाता है तो उसमें हम इंटरएक्टिव सेशन के जरिए, ये जो आपको भी मैंने कहा कि आपको मैं साथ साथ गाइड करता रहूंगा, वो हम इंटरएक्टिव सेशन में लेके चलेंगे। और ये मत भूलें कि साथ साथ कुछ क्विज या असाइनमेंट्स भी होनी है। ये एक और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। अब मेरे आपसे ये एक गाइडेंस होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप एग्जैक्टली अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या अगर एग्जाम में ऐसा सवाल होता है तो इसकी छाप ना लगा दीजिएगा कि लें जी ये स्लाइड में था तो यही हम बना देते हैं। स्लाइड के अंदर जनरलाइज्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए या जो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा एग्जाम में उसके लिए स्पेसिफिक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि जी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं। एक ड्राइंग आपको इस तरह की बनानी है, उसमें प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, फेजेस के नाम लिखने हैं, और जब फेजेस के नाम मुकम्मल हो जाएं तो हर फेज के नीचे आपने उस फेज के डिलीवरेबल्स, और अगर मुमकिन है तो सब डिलीवरेबल्स के नाम आगे लिखने हैं। और फाइनली जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो जनरलाइज में शो नहीं होता, वो स्पेसिफिक में शो होगा, वो होगा सबसे आखिरी लेवल WP। तो WP आपको याद है क्या, अभी आपको बताया था, वर्क पैकेज। अब कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, अब सारी की सारी एग्जांपल्स मैं जुबानी आपको उनकी कमेंट्री नहीं बता सकता, लेकिन आप उसे पढ़ सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन से फेज में कौन कौन से डिलीवरेबल्स और सब डिलीवरेबल्स, उनके नाम लिखने हैं। आसानी आपके लिए ये होगी कि आपको सिर्फ इन डिलीवरेबल्स और सब डिलीवरेबल्स के नाम लिखने हैं, सिर्फ ये नहीं लिखना कि वो डिलीवरेबल्स क्या होंगे अंदर, उनके अंदर काम क्या होना है, वो नहीं करने। आपको सिर्फ, आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आपको सिर्फ इन चीजों के नाम लिखने हैं, इनको बनाना नहीं है। वो तो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम बनाएगी। तो काफी सारी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे मैंने रख दी हुई हैं। आपने आज, या फिर जब हम इंटरेक्टिव सेशन करेंगे उसमें काम ये करना है कि आपको अपने प्रोजेक्ट जो आपको असाइन हो चुका हुआ है, आपने सिंगल पेज पे या एक शीट पे उसके अंदर आने वाले तमाम डिलीवरेबल्स के नाम लिखने हैं, फेजेस के नाम लिखने हैं। ये होमवर्क है, ये असाइनमेंट नहीं है, गाइडलाइन है कि आपको क्या क्या काम करना है। लेकिन ज्यादा तफसील में इसकी डिस्कस करूंगा इंटरेक्टिव सेशन। कुछ स्टेप्स हैं, इन पर भी हम बात करेंगे इंटरेक्टिव सेशन में, लेकिन मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं ताकि आप इनको एक आध मरतबा पढ़ें। अब ये लेट्स फिनिश दिस वीडियो, आई हैव कम टू द कंक्लूजन। जो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो में मुकम्मल हो जाए वो मैंने कर दिया। हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, कि ये क्या चीज होती है, उसकी शक्ल, उसकी शेप किस तरह की होती है, और क्यों हम बनाते हैं। और आपको याद रखने वाले जो लफ्ज हैं वो मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की हायरार्की में हमें फेजेस के नाम शो करने हैं, हर फेज के अंदर डिलीवरेबल्स और सब डिलीवरेबल्स के नाम शुरू शो करने हैं, और जो चीज आप बिल्कुल नहीं भूलनी वो है वर्क पैकेजेस। जो हर एक डिलीवरेबल या सब डिलीवरेबल जो किसी एक फेज में होंगे उनका आखिरी लेवल होगा, जो हमें बताएगा कि जी इसके एंड पे वर्क पैकेज कौन सा है, जो किसी एक शख्स या किसी टीम को साइन होना है। और उससे भी ज्यादा आपको ये नहीं भूलना कि हर वर्क पैकेज के अगेंस्ट आपको एक एक्टिविटी का नाम लिखना है। और जब पूरा वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका हो, उसकी तमाम वर्क पैकेजेस भी आ चुकी हों, तो फिर आपके सामने तमाम एक्टिविटीज भी आ चुकी होंगी। आप एक सीक्वेंस में चार्ट ऑफ एक्टिविटीज के अंदर उन एक्टिविटीज को लिख लेंगे, क्योंकि आगे चल के वही एक्टिविटीज आपके प्रोजेक्ट नेटवर्क और CPM या PERT और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट स्केड्यूल में आपकी रहनुमाई करेंगे। So this will be all for today's discussion. Today we have completed at least the introduction of the term work breakdown structure. Work breakdown structure is a very important milestone in your project management activities because it will give you
the detail of the decomposition of the work up to its minor levels in the form of work packages. You can use the work packages to identify the activities that will be listed in the chart of activities. And once again, I apologize that we could not have the camera ready for today's lecture because of some hardware issues. So hopefully, inshallah, in the next meet, that will be in the next day, we'll be able to use the camera. So this is the end of the first part, the video one. Hopefully you've understood and enjoyed as much as I have enjoyed in presenting it to you. Thank you so much. Take care, everybody. And don't go away. The video two is coming after a few minutes. Allah Hafiz.